Hello everyone, I welcome you all in this video series in which we are going to discuss about the previously asked gate problem on the rolling process. Previously we have covered the video series on the metal cutting operations. So it's my suggestions, those who are preparing for the gate exams or engineering services examination, that kindly go through these videos for the rolling process, and these videos are much simpler than the मेटल कटिंग. नॉट ओनली द मेटल कटिंग बट ऑल्सो जो भी आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस हैं कोई भी, ठीक है, या फिर मशीनिंग प्रोसेस हैं, तो द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इन दिस रोलिंग आर much easier than that one. Okay, so and in this video series I'm covering the rolling process numericals of gate exams from 1987 to 2020, and till now around 19 to 20 problem has been asked in the gate examinations. Okay, so it's my suggestions that जब भी गेट के में रोलिंग का न्यूमेरिकल आते हैं लाइक 1 or 2 marks में, then definitely it will give you the complete marks. Okay, जो भी marks assign है, so it will give you complete marks. Okay, and there is a very rare chance of the negative marking, because generally इसमें क्या होता है कि आंसर आ जाता है and whatever the answer you are getting, that is maximum probability that you will get a correct answer. Okay, because it's a simple calculation. और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स ऐसे भी हैं जो हम वीडियो में देखेंगे, दैट देयर इज नो नीड टू यूज द कैलकुलेटर, जस्ट our brain is okay for that calculation. And so yeah, one more thing is, like, I have not given a separate video for the numerical calculation, means how to get the formula. So because that is like pura rolling mein aapka 5 to 6 formulas hain. Okay, and I don't want that and that can be covered in 10 to 15 minutes. Okay, maximum 15 minutes. So I don't want that. I For that 15 minutes I should go for a separate video. Okay, so in this video itself, with the beginning, I'm starting with that one, and I'm not covering the theory part, just covering the numerical portion. Okay, so without wasting time, let's start. Okay. Okay, so rolling means there are two rollers. Just try to assume that these are the two rollers. Okay, by the way, rollers means that is completely circular. The periphery of that here is that is circular. Okay, so these are the two rollers and both are identical in shape. Here it's not identical नहीं है लेकिन, but you have to assume. Okay, अब इसमें मैक्सिमम हम लोग मान लीजिए कि ये इसका सेंटर है ऊपर वाले का, तो यहाँ से दिस इज सेंटर एंड यहाँ से ये आपका इसका सेंटर हो गया. ठीक है, अब मैक्सिमम जो इंसर्ट कर सकते हैं, इंसर्ट जो शीट हम लोग इंसर्ट करते हैं टू रिड्यूस द साइज ऑफ द थिकनेस ऑफ दैट शीट और टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ दैट, तो हम इससे ज्यादा नहीं कर सकते. जो इन दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस है, हम इससे ज्यादा उसको इंसर्ट नहीं कर सकते, बिकॉज अदरवाइज वो इंसर्ट नहीं हो पाएगा. ठीक है, हमें क्या करना है, इससे नीचे ही रखना है. मतलब इस ये जो डिस्टेंस है, जो थिकनेस होगी शीट की जो हम इसमें इंसर्ट करने वाले हैं, विच विल मूव इन दिस डायरेक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो वो उसकी जो थिकनेस होगी दैट विल बी लेसर देन दिस डिस्टेंस बिट ऑफ दिस सेंटर्स. ओके, तो मान लेते हैं कि ये आपका इनिशियली h1 थिकनेस में मान लेता हूं, दैट इज इनिशियल थिकनेस. ठीक है, ऑफ दैट प्लेट दैट वी आर यूजिंग, एंड इसका इस डायरेक्शन में कुछ विड्थ है, तो b हम कंसिडर कर लेते हैं. ठीक है, नाउ देयर इज assumption in the rolling process that जो b है आपका, वो इनिशियल प्रोडक्ट का जो है वही फाइनल प्रोडक्ट का रहेगा. मींस विड्थ ऑफ द वर्क पीस विल नॉट चेंज. ओके, नेक्स्ट इज ये वाला जो पोर्शन है जहां से आपका मटेरियल जो है वो एग्जिट होगा. ठीक है, तो ये जो है आपकी दैट इज फाइनल थिकनेस, दैट इज h2 हम मान लेते हैं. ठीक है, ये वाली है, और जो विड्थ है वो कांस्टेंट है, दैट इज b. ओके, अब अगर मान लीजिए कि मैं वॉल्यूम, जो इनिशियल वॉल्यूम है दैट इज इनिशियल वॉल्यूम इक्वल्स टू फाइनल वॉल्यूम, क्योंकि मटेरियल तो रिमूव हो नहीं रहा, सो दैट वुड बी इक्वल. तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, b दैट इज विड्थ इनटू लेंथ इनटू थिकनेस. तो थिकनेस की मैं जगह यहाँ पे h1 यूज कर लेता हूँ. ठीक है, तो L1 और h1 इक्वल्स टू b इनटू L2 इनटू h2.
देखिए अब क्योंकि बी चेंज नहीं हो रहा है तो ऑटोमेटिकली लेंथ तो आपका चेंज होगा ही होगा, अदरवाइज अगर आप कह दो कि लेंथ भी चेंज नहीं हो सकता तो फिर हाइट कैसे चेंज हो जाएगी या थिकनेस कैसे चेंज हो जाएगी, ठीक है। सो वॉल्यूम शुड बी सेम, सो लेंथ हैज टू बी चेंज, ओके। अगर आपका जो h1 है दैट इज ग्रेटर देन h2 देन डेफिनेटली l2 विल बी ग्रेटर देन l1, ओके। नाउ सेकंड थिंग इज, ये जो है आपका सेंटर है, अब इसमें एक काम कर लेते हैं हम लोग कि ये एक सेंट्रोइडल एक्सिस मान के चलते हैं। ये क्यों मान रहे हैं, क्योंकि वॉट एवर हैपनिंग to the top side, same thing similar happening in the bottom side because both are symmetrical in nature, okay। So I am assuming that this is the centroidal axis और ये जो आपका सेंटर है फर्स्ट ऊपर वाले रोलर का, तो दिस इज द रेडियस r, okay। r is the radius of that roller, okay, और capital D diameter भी कंसीडर कर सकते हैं। now this is the portion, okay, this portion now हम उसको मार्क कर देते हैं, that is a, इसको O कर देते हैं, इसको B कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो AB सेक्शन है, ये AB सेक्शन है रोलर का भी, मतलब that is basically the contact area, okay। so this is like contact between the workpiece material and the roller, okay। तो जो भी रोलर के थ्रू जो फोर्स एक्सर्ट होगा दैट विल बी एप्लीकेबल ऑन दिस एरिया, ओके। नाउ ये एरिया जो है दैट इज बेसिकली एक, if you look it from front side then it will looks like a arc, okay। तो ये जो है अब इसको हम कहते हैं, जो कॉन्टेक्ट आर्क है इसको हम बोलते हैं AP, स्मॉल a p, दैट इज प्रोजेक्टेड आर्क, ठीक है। और जो कॉन्टेक्ट एरिया है दैट इज एरिया कैसे मेजर कर लेंगे, ये वाली जो आपकी लेंथ है आर्क वाली और उसकी जो विड्थ है, ठीक है। तो कैपिटल AP मैं उसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। नाउ अब हम लोग इसका कुछ जो टर्मिनोलॉजी है वो क्या क्या है वो देख लेते हैं। फर्स्ट इज h1 जो है आपका वो इनिशियल थिकनेस है, ठीक है। h2 जो है आपका फाइनल थिकनेस है। नाउ डेल्टा h जो है दैट इज डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल माइनस फाइनल, सो दैट इज बेसिकली द, यहाँ पे हम लोग इसको डिफाइन करते हैं ड्राफ्ट से और रिडक्शन, ओके। सो दैट इज इक्वल्स टू h1 माइनस h2, कितना रिडक्शन हुआ है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा h, और ड्राफ्ट भी कह सकते हैं हम लोग इसको, ठीक है। एक दूसरी जो चीज है दैट इज ये जो एंगल है, ठीक है, हम इसको बोलते हैं बाइट एंगल, ओके। तो ये जो डायग्राम है, मैं इसको, ये जो ट्राइंगल है बेसिकली मैं इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर देता हूँ थोड़ा एनलार्ज करके, ठीक है। ये आपका O है, ये A है और ये आपका B है, ठीक है। अब जनरली क्या करते हैं कि ये जो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे दैट इज प्रोजेक्टेड आर्क, ये जो अल्फा होता है दैट इज बाइट एंगल। और देखिए बाइट एंगल क्या है कि हाँ, जितना आपकी थिकनेस इनिशियली मतलब जो रिडक्शन है वो क्वांटिटी उसकी जितनी ज्यादा होगी उतना ही अल्फा क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो बट ऐसा भी नहीं है, मान लीजिए कि आप 5 mm का इनिशियल आपका h1 है 5 mm एंड ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आप 4 mm एक साथ रिड्यूस करके फाइनल जो है आपका 1 mm मिले, दैट कैन नॉट बी पॉसिबल, ओके। जनरली जो रिडक्शन होता है बिकॉज दैट इज नॉट प्लास्टिक, whatever the specimens that we are using in the rolling process that is basically of steel, okay। तो जो रिडक्शन होता है दैट रिडक्शन इज लाइक 1 mm 2 mm 3 mm, okay, up to that only, that maximum is 3 mm, बट उससे ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। तो अल्फा की जो वैल्यू है, अब आपका रिडक्शन ही अगर कम है तो अल्फा की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अल्फा की जो वैल्यू रहती है दैट इज जनरली अराउंड 15 to 20 डिग्री, मतलब अप टू 20 डिग्री रह सकता है, दैट इज मैक्सिमम अगेन, ओके, उससे ज्यादा नहीं होगा। तो ये जो अल्फा है, अगर आपका अल्फा ही बहुत कम है, मींस अल्फा की वैल्यू ही बहुत कम है, तो ये जो प्रोजेक्टेड आर्क है ये भी कितना होगा, बहुत स्मॉल होगा, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं कि जो भी यहाँ पर चूंकि ये बहुत स्मॉल है तो हम लोग इसको इस तरह से कैलकुलेट कर लेते हैं कि जो भी फोर्स दैट इज एक्सर्टेड बाय द रोल, ओके, on this projected or because as it is moving in this direction, तो ये जो कांटेक्ट है हम लोग क्या करके चलते हैं कि देखिए जब भी हम लोग ये जो आपका रोलर है, ठीक है, ये आपका रोलर है इस तरह से इस पे मूव कर रहा है फ्लेट पे, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दैट मूवमेंट दिस इज आल्सो मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ओके। तो इसके बीच में क्या है, एक इट्स लुक्स लाइक ए shear, ठीक है। तो इसमें क्या है कि यहाँ पे आपका shear फोर्स भी हम कंसिडर करते हैं,
ठीक है, shear force भी, because that is the movement of this specimen in this direction horizontally. Okay, and here this is the projected area where the contact between the roller and the specimen is established. Okay, till there. Okay, तो ये जो है आपका R हो गया। अब आइदर मैं या तो इसको फाइंड आउट कर लूं या फिर मैं क्या करता हूं, मैं इसको कैलकुलेट करता हूं। इसको हम लोग बोलते हैं LP, दैट इज प्रोजेक्टेड लेंथ। ओके, तो ये आप LP का हो, LP कैलकुलेट करो चाहे AP कैलकुलेट करो, बोथ वॉट एवर द वैल्यू एट द एंड यू विल गेट, बोथ विल बी सेम। ओके, तो मैं क्या करता हूं कि इसमें मैं LP फाइंड आउट कर देता हूं, एंड इन केस यू विल गेट द टाइम, देन आप लोग AP फाइंड आउट करके मुझे बताइएगा। ठीक है, तो LP जो फाइंड आउट करने का तरीका है, दैट इज R मुझे गिवन है। नाउ ये वाला जो दिस दिस इज H2। ओके, और ये आपका सेंटर है, सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, R, दैट इज रेडियस। ठीक है, तो यहां से यहां तक की रेडियस है R, ये वाला पूरा। ठीक है, O to B, OB। अब ये जो है, ये पॉइंट जो है, अब ये पॉइंट्स है, दैट इज H1। ठीक है, दिस इज H1। मैं पेन चेंज कर लेता हूं। ओके, सो दिस इज कंप्लीट इज H1। ओके, और ये जो है आपका दैट इज H2। तो एज आई सेड कि जो ये सेंट्रोइडल एक्सिस है, इससे टॉप साइड और बॉटम साइड बोथ आर सिमेट्रिकल। तो ये जो पोर्शन है, दिस पोर्शन प्लस दिस पोर्शन, दैट इज हाउ मच, दिस इज डेल्टा H। ओके, दिस पोर्शन प्लस दिस पोर्शन, ओके, दिस इज हाउ मच, डेल्टा H। तो हाफ पोर्शन है, मतलब चूंकि सिमेट्रिकल है तो हाफ पोर्शन है, तो कितना हो जाएगा ये वाला पोर्शन, दैट इज डेल्टा H बाई 2, और ये वाला पोर्शन भी कितना हो जाएगा, डेल्टा H बाई 2। तो ये जो पोर्शन है डेल्टा H बाई 2, दैट इज व्हाट, दिस इज दिस वन। ओके, दिस इज डेल्टा H बाई 2। तो ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा, दिस इज C, देन OC इज हाउ मच, R माइनस डेल्टा H बाई 2। ठीक है, तो मुझे यहाँ से क्या है कि LP फाइंड आउट करना है। तो LP फाइंड आउट करने के लिए मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देता हूँ। ठीक है, तो पाइथागोरस, अच्छा पहले LP फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर अल्फा फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो LP फाइंड आउट करना है, तो मुझे AC होल स्क्वायर इक्वल्स टू OA होल स्क्वायर प्लस OC माइनस, सॉरी, माइनस OC होल स्क्वायर। ठीक है, so AC is how much, that is LP square equals to OA, OA is how much, R square minus OC is R minus delta H by 2 whole square. So when you will open this, R square minus A square minus B, A minus B whole square, so this is A square minus B square minus 2AB, so minus minus will be plus, plus 2A, that is R delta H by 2, so this will be cancel out। इस ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। डेल्टा H की जो वैल्यू है, एज आई सेड कि रिडक्शन आप बहुत कम करते हैं ऑलरेडी, उसका भी स्क्वायर कर रहे हैं आप, और डिवाइड में 4 है, तो ऑलमोस्ट दिस वैल्यू विल बी इक्वल्स टू 0। ओके, तो यहाँ पे कितना बचा राइट हैंड साइड में, सिर्फ R इंटू डेल्टा H। तो LP की वैल्यू कितनी निकल जाएगी यहाँ से, रूट स्क्वायर R इंटू डेल्टा H। ठीक है, तो ये आपकी आ गई प्रोजेक्टेड लेंथ। ये जो प्रोजेक्टेड लेंथ है, अब आप इसको कैलकुलेट चाहे AP को करेंगे, यू विल गेट द सेम वैल्यू। ओके, नाउ अल्फा, अल्फा इज दिस इज अल्फा। ओके, तो इसमें आपको ये दिस इज हाइपोटेन्यूस गिवन है और आपको बेस गिवन है। ठीक है, तो क्या लगाएंगे, कोस, तो कोस अल्फा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, सो बेस इज R माइनस डेल्टा H बाई 2 अपॉन R। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 माइनस डेल्टा H बाई 2R, तो 2R को मैं D से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, दैट इज डायमीटर ऑफ रोलर। ओके, तो यहाँ से क्या होगा कि जो भी वैल्यू आपको यहाँ से मिल रही है 1 माइनस डेल्टा H बाई D से, उसको जब कोस इनवर्स करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू इन डिग्री। ओके, बट सम मेनी ऑफ द टाइम्स द क्वेश्चन इज, मतलब जो एंगल है आपका डिग्री में नहीं पूछा जाता, वो रेडियन में पूछा जाता है। ठीक है, तो दैट इज यू हैव टू मल्टीप्लाई विद पाई बाई 180। ओके, सो व्हाट एवर द वैल्यू यू विल गेट दैट इज इन रेडियन। ओके, तो अभी तक हम लोग अभी एक और चीज इसमें देख लेते हैं कि ये एक जो आपने AP लिखा है शुरू में यहाँ पे, ओके, दैट इज बेसिकली कैपिटल AP, दिस इज बेसिकली प्रोजेक्टेड एरिया। नाउ प्रोजेक्टेड एरिया कौन सा है, ये वाला। ठीक है, ये वाला, ये जो है,
तो ये वाला प्रोजेक्टेड एरिया कितना है, ये आपका आर्क हो गया या फिर लेंथ मान लीजिए, और ये कितनी है आपकी बी। तो AP, कैपिटल AP विल बी इक्वल्स टू B इंटू LP। ओके, सो ये आपका प्रोजेक्टेड एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक हम इसमें सिर्फ इतना ही डिस्कस करते हैं, जब जरूरत होगी आगे तो हम लोग जो नेक्स्ट थिंग्स जो रिक्वायर्ड है वो देख लेंगे। ठीक है, तो अभी जो प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास अवेलेबल उनके लिए इतना काफी है। ठीक है, सो लेट्स मूव टू दी प्रॉब्लम। Okay, so first problem है that is asked in the गेट 98 97। पहले क्या होता था, कन्वेंशनल प्रॉब्लम ज्यादा पूछी जाती थी। ठीक है, 5 मार्क्स में। तो a metal strip to be rolled from an initial road thickness of 3.5 mm। ओके, तो H1 मान लेते हैं हम लोग, जो H1 है आपका दैट इज 3.5 mm है। ठीक है, दूसरा टू बी फाइनल रोल्ड थिकनेस ऑफ 2.5 mm। ठीक है, तो जो फाइनल थिकनेस है आपका दैट वुड बी 2.5 mm। ठीक है, एंड दैट हैज टू बी डन इन अ सिंगल पास रोलिंग मिल। ओके, सिंगल एक ही पास है आपका, एंड रोल हैज अ डायमीटर दैट इज कैपिटल D की वैल्यू आपको गिवन है दैट इज 250 mm। ठीक है, एंड स्ट्रिप इज 450 mm वाइड। तो बी जो है आपका दैट इज विड्थ दिया है आपको दैट इज 450 mm। ओके, द एवरेज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इन द रोल गैप इज 0.08। सो म्यू हम लोग कंसिडर करते हैं, उसकी वैल्यू आपको गिवन है यहाँ पे 0.08। ठीक है, टेकिंग प्लेन स्ट्रेन फ्लो स्ट्रेस ऑफ 140 मेगापास्कल मींस आपको जो यहाँ पर शियर स्ट्रेस गिवन है दैट इज 140 MPa that is megapascal। okay, for the metal and assuming negligible spreading, मतलब spreading नहीं हो रही है मींस आपका जो B है दैट इज कांस्टेंट। ओके, एस्टिमेट द रोल सेपरेटिंग फोर्स। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि रोल सेपरेटिंग फोर्स जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, नाउ यहाँ पे आपको स्ट्रेस दिया है। ठीक है, तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है दैट इज सिंपल, इट्स वेरी सिंपल मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स। ओके, सो दिस इज टाउ दैट इज शियर स्ट्रेस इनटू एरिया। ओके, प्रोजेक्टेड एरिया, तो दैट विल गिव यू द फोर्स। ओके, सो टाउ आपको गिवन है, बट एरिया क्या होता है दैट इज B इंटू LP। अगेन LP क्या होता है आपका टाउ इंटू B इंटू LP दैट इज R इंटू डेल्टा H। ओके, तो टाउ दैट इज शेयर स्ट्रेस जो आपको गिवन है, B विड्थ गिवन है, R डायमीटर गिवन है, तो कन्वर्ट कर लेंगे। डेल्टा H is the draft, basically H1 minus H2, so both are given to you, so just you can find out the value of F। so this will give you 140 MPa। MPa means न्यूटन पर mm स्क्वायर। so mm स्क्वायर में है तो हम लोग इनको क्या करते हैं mm में ही रख लेते हैं। ठीक है, so value of B is 450। okay, into R। R is how much, that is D आपका 250 है, तो R कितना हो जाएगा 125। okay, delta H is how much, H1 minus H2, so this will be 3.5 minus 2.5। ओके, तो यहाँ से आपको क्या करना है कि यू हैव टू फाइंड आउट द कैलकुलेट द वैल्यू। ओके, सो व्हाट आई एम गेटिंग इज after calculating this I am getting this is 704.361 किलो न्यूटन। ओके, अगर मेगा न्यूटन में लिखना है तो मैं इसको 0.7044 मेगा न्यूटन। सो दिस विल बी द आंसर। नाउ इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि इसमें आपको ये नहीं दिया है कि फाइंड आउट द टोटल फोर्स। ओके, क्योंकि इस अभी जो हमने ये फोर्स फाइंड आउट किया है ये क्या है कि दैट इज रोल सेपरेटेड फोर्स बाय अ सिंगल रोल। ओके, तो अगर टोटल फोर्स पूछा होता तो दैट विल बी मल्टीप्लाई बाय we have to multiply this with the 2 because दो rollers है ना। generally we are assuming that there are minimum should be there are 2 rollers। okay, so total force will be equals to 2 times of what we are getting in this। okay, so don't confuse in that if you will see that answer। okay, so let's move to the next problem। okay, so second problem is asked in the gate 1998। a strip with a cross section of 150 into 4.5 mm। so the width of this is given to you that is 150 mm। okay, and initially we are assuming because आपका जो वॉल्यूम होता है वॉल्यूम हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं L that is length into width into thickness। okay,
तो यहाँ पर वॉल्यूम तो गिवन नहीं है, तो एल नहीं गिवन है, जो एरिया है दैट इज बी इंटू टी। तो टी जो है दैट इज थिकनेस, तो बी आपका 150 हो गया, और थिकनेस जो है दैट इज h1 इनिशियली दैट इज 4.5 mm। ओके, ये आपका h1 हो गया, is being rolled with 20% of 20% reduction of area। okay, now ये जो reduction है इसका मीन मतलब क्या है यहाँ पे कि that is 20% reduction हो रहा है, means how much is remaining will be equals to the rest of that। okay, means 20% अगर reduction हो गया तो 80% जो है that is still there। okay, and if nothing is given to you that how many passes are there, then you have to assume that this 20% reduction in a single pass। okay, so x is given to you, मान लेते हैं हम लोग x की वैल्यू है that is 20%, so this is 0.20। h2 कितना हो जाएगा, that is 1 minus 0.20। okay, so this will give you into h1। okay, so this will be equals to h2। और हम लोग अगर सीधा ड्राफ्ट ही निकालना चाहें तो because as I said in the beginning that this is either it is a draft or reduction, तो ये कितना बचेगा 0.20 into h1 जो भी है। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट इज आपको डायमीटर गिवन है दैट इज 450 mm, सो d इक्वल्स टू 450 mm। ओके, आपको क्या करना है कि एंगल सबटेंडेड बाय द डिफॉर्मेशन जोन एट द सेंटर, तो आपको क्या है कि एंगल ऑफ बाइट एंगल फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमने फॉर्मूला लिखा था दैट इज कोस अल्फा इक्वल्स टू 1 माइनस डेल्टा एच बाई डी। ठीक है, तो 1 माइनस डेल्टा एच कितना हो जाएगा 0.20 इंटू एच वन इज हाउ मच 4.5। डी कितना है आपका दैट इज 450। ठीक है, तो यहाँ से जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, सो व्हाट आई एम गेटिंग इज आई एम गेटिंग 0.98। ओके, ये जो वैल्यू मिल रही है मुझे मिल रही है कोस अल्फा की। ओके, तो यहाँ से जब मैं कोस इनवर्स करूंगा तो अल्फा मुझे मिलेगा दैट इज 11.4783 डिग्री। ओके, बट ये डिग्री में है, मुझे किस में चाहिए, आप पूछा किस में गया है, रेडियन में। ओके, तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मल्टीप्लाई विद पाई बाई 180। ठीक है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट द आंसर दैट इज 0.20 रेडियन। ओके, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। फाइन, इजी क्वेश्चन है, क्या किया आपने, फॉर्मूला पुट किया एंड यू हैव टू गेट द आंसर। एक प्रॉब्लम और कर लेते हैं। okay, the next problem is asked in gate 2001। a number of cold rolling passes are required in two high rolling mill। मतलब टू हाई रोलिंग मिल्स, मतलब एक ऊपर है और एक नीचे है। ठीक है, टू रिड्यूस द थिकनेस ऑफ अ प्लेट फ्रॉम 50 mm टू 25 mm। तो इनिशियली क्या है आपका h1 दैट इज 50 mm, और h2 जो है दैट इज 25 mm। ओके, and the roll diameter is 700 mm, तो diameter जो है that is 700 mm। ठीक है, the coefficient of friction at the roll work interface is 0.10, so this is 0.10। okay, it is required that the draft in each pass must be same। okay, मतलब जो draft है, मतलब we don't know that how many passes are there, so but in every pass the draft is same। okay, we have to keep in mind, assume no drafts, no front and back tensions are there, so determine the minimum number of passes required। now as I said before कि जितना फॉर्मूला वहां तक रिक्वायरमेंट था वो हमने कर लिया। नाउ इसमें क्या है कि एक फॉर्मूला और है जो मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग क्या इसमें क्या होता है कि डेल्टा एच जो होता है वी हैव टू फाइंड आउट दैट मैक्सिमम। अगर हमें ये मैक्सिमम फाइंड आउट करना है तो क्या पॉसिबिलिटीज है, हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। पहला जो फॉर्मूला है दैट इज h1। ठीक है, इनिशियली आपको h1 दिया है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू कब हो सकती है कि जब h2 की जो वैल्यू है वो मिनिमम हो जाए। ठीक है, तो h2 को हम यहाँ कंसिडर करके चलते हैं दैट इज मिनिमम। ठीक है, दिस इज, ये तो है पहला फॉर्मूला। दूसरा क्या है कि जब भी आपका इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं जहां पर आपको मिनिमम नंबर ऑफ पासेस दिया है वहां पे आपको म्यू हमेशा दिया रहेगा। ठीक है, तो डेल्टा एच मैक्सिमम जो है दैट इज अपॉन मिनिमम नंबर ऑफ पासेस इक्वल्स टू म्यू स्क्वायर इनटू आर।
ठीक है, ये आपका एक फॉर्मूला है। ठीक है, यू हैव टू कीप इन माइंड, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि यही फॉर्मूला हमें लगाना है। नाउ डेल्टा एच जो है वो तो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि H1 और H2 की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है यहाँ पे। ठीक है, तो H1 माइनस H2 दैट इज 50 माइनस 25। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट क्या करना है, मिनिमम नंबर ऑफ पासेस। ओके, तो यहाँ पे मैं कैपिटल N से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, दैट विल शो दैट विल गिव यू द मिनिमम नंबर ऑफ पासेस। ओके, that is equals to mu square, that is mu is how much, 0.10 square into r is how much, that is d is given to you, that is 700, so r will be equals to 350। ओके, तो जब आप इसको इधर से ये वाला कैलकुलेट करेंगे, इट विल गिव यू 3.5। ओके, तो यहाँ से n कितना हो जाएगा, n will be equals to 50 minus 25, that is 25 by 3.5। so here you will get the value like what I am getting is, that is 7.1428। ओके, बट आपका क्या हो सकता है कि 7 पॉइंट में तो हो नहीं सकता, या तो 7 मान लीजिए या फिर 8 मान लीजिए। मैं इसको 8 मान के चल रहा हूँ। ठीक है, आप 7 भी मान सकते हैं। ठीक है, तो दिस विल गिव यू इक्वल्स टू, आई एम गेटिंग इज लाइक 8 नंबर ऑफ पासेस, मिनिमम नंबर ऑफ पासेस इज रिक्वायर्ड। ओके, दिस इज मिनिमम नंबर। ओके, सो दिस इज द आंसर। now on the basis of this we have to calculate the draft in each pass। okay, by the way हमने यहाँ से पहले कैलकुलेट कर सकते थे। okay, but maximum draft कितना है आपका, that is 50 minus 25, so this is equals to 25। तो for draft in each pass ये कितना हो जाएगा, टोटल पासेस कितने हैं आपके 8। ओके, तो मैक्सिमम ड्राफ्ट कितना है आपका 25 by 8, so this will give you what I am getting is, that is 3.125 mm। okay, this is the draft in each pass that you have to be, मतलब इतना रिडक्शन होगा। ठीक है, एंड टोटल कितने हैं, 8 passes हैं, so you have to keep in mind this formula। okay, this formula। so in this video we are stopping up to here, in the next video we'll start from the fourth problem onwards। so thank you so much guys।